While others may see what we see, the steel that we strengthen ourselves, each carat of gold that we forge, every single part designed, shaped, polished by our own hands. It takes constant care and countless skills, but above all, it takes time. Only after hundreds of days of devoted work can we finally print this word on each single dial: superlative. The mark of our autonomy, our responsibility, our integrity. For this is all we make. But we make it all, so that in time, you can make it your own. Welcome back, investors and traders. Today we are going to look at a niche player, which is a company which is into luxury watches. This company, let us look at how this company, what are the main products portfolio, etc. So it is the largest luxury watch companies in India, having 13% share of total retail sales in premium and luxury segment and 20% share in the exclusive luxury segment in FY20. Ethos retails 60 plus premium and luxury watch brands in India. It has got around 60 plus premium watch brands, and the company started retailing of Rimowa. Okay, so they have an agreement with Rimowa for retailing the luxury luggage and Messika for luxury jewelry into FY24. Company is focusing to grow the unorganized pre-owned watch segment as it sees huge potential in this segment. तो ये देखो, ये इसमें ऐसा है कि ये इसमें यूएसपी ये है कि लॉट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड फ्रैगमेंटेड शॉप्स होते हैं. तो ईथॉस क्या होता है, ईथॉस विल बी इन मेजर मॉल्स एक्सेट्रा, और वो इट गिव्स अ गुड एक्सपीरियंस फॉर द हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स व्हाइल बाइंग लग्जरी वॉचेस. तो ये अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज का शिफ्ट जो है, इस पे ये पूरा खेल है ईथॉस का. तो ये टू बी बोर्न इन माइंड, इज ओनली ऑर्गेनाइज प्लेयर इन इंडिया विद द कैपेबिलिटी ऑफ सर्टिफाइंग, बाइंग एंड रेस्टोरिंग प्री ओन वॉचेस. तो आप ये सबसे बड़ा मोट कंपनी का हो सकता है आगे जाके, ओनली ऑर्गेनाइज प्लेयर. तो ये आप देखोगे तो लग्जरी वॉचेस में देयर आर मल्टीपल स्मॉल स्मॉल स्टोर्स विच आर देयर अक्रॉस द कंट्री, बट इथोस क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइज्ड वे में ये लग्जरी वॉचेस को प्रेजेंट कर रहा है. ब्रांड्स ओमेगा, IWC, देन जेगर, देन ये सब उनके ब्रांड है. ये देखो, ये सबसे इंटरनेशनल ब्रांड्स वॉचेस का इन लोग का ये ब्रांड्स है. दे हैव अ ब्रांड्स. कंपनी विल लॉन्च स्विस वॉच ब्रांड लॉरेंट फेरियर इन इंडिया इन FY24. द कंपनी एडेड 6 न्यू ब्रांड्स इन. तो ये द इंटरनेशनल ब्रांड के साथ इनका टाइप है. omni channel distribution, so they sell their products through stores categorized as Ethos Summit stores, multi-brand stores, Ethos Boutiques, boutiques, airport store, CPO luxury watch launch and mono brand boutiques and online channel. So यहाँ से आपका इनका distribution होता है. Their omni channel strategy has resulted in strong growth offline as well as online. तो इनका दोनों का growth अच्छा हो रहा है. दे हैव गॉट एन क्लब इको करके इनका एक लॉयल्टी प्रोग्राम है जिसमें हाई नेटवर्थ कस्टमर्स दे गेट रजिस्टर्ड इन दिस, एंड देयर आर 3,15,000 हाई नेटवर्थ कस्टमर्स विथ 45% रिपीट कस्टमर रेशियो. ये बहुत बढ़िया नंबर है. 45% रिपीट कस्टमर्स है, मतलब ये रिपीटेडली बाय करेंगे वॉचेस. स्टोर्स एज ऑफ FY24 कंपनी 60 प्लस रिटेल स्टोर्स अक्रॉस 23 सिटीज. 23 सिटीज में इनका प्रेजेंस है. 60 से ज्यादा रिटेल स्टोर्स है. 15 Ethos Summit stores, 1 airport store, 20 MBOs, 13 Ethos boutiques, 10 luxury segment mono brand boutiques, etc. Then company has entered Siliguri, Bhopal, Surat and Bhubaneswar. तो ये सब यहाँ पे भी कंपनी जा रही है. ऑनलाइन चैनल में ethoswatches.com इनका एक वेबसाइट है जहाँ पे दे सेल प्रीमियम एंड लग्जरी वॉचेस. प्रोडक्ट रेंज हाई लग्जरी प्राइस पॉइंट 10 लाख रुपीज प्लस के वॉच पर वॉच 10 लाख प्लस. इसका 19.98% का उसका 21 का रेवेन्यू था. उसके बाद में उनका लग्जरी सेगमेंट 2.5 to 10 lakhs, ब्रिज टू लग्जरी सेगमेंट 1.2 to 1 lakhs to 2.5 lakhs, प्रीमियम सेगमेंट्स 0.25 lakhs, 25,000 to 1 lakh का है उनके पास. फैशन एंड मास सेगमेंट इज अप टू 25,000. सो ये सब के वॉचेस इनके पास पूरी कैटेगरी है, 10 लाख से लेके नीचे 25,000. Average selling price, company average selling price per watch in the retail business increased on year basis. So ये सब
IPO का है. So let us look at how their quarterly performance has been. So these are the stores which Ethos has got across the country. So this store is particularly in Kochi, Kerala. So this is the store. So what happens is when high net worth customers enter into the store, their ambience is good, the overall vibes are good, the watches are displayed in a very nice fashion, and they have got seating arrangements, so customers can easily have this experience of buying watches. So this is in Uttarakhand, Dehradun. This Ethos watches, this is in Millennium Pune. मॉल है, मॉल में है पिंपरी चिंचवड़ वाकड़ में ये स्टोर है इनका. तो ये स्टोर लास्ट क्वार्टर में एक स्टोर ओपन किया है. दिस स्टोर इज ऑल्सो इन बेंगलुरु. Then they have got a new marquee brand exclusive partnership. So ID Genève was started by 3 childhood friends in the year 2020 in Switzerland. So the current Circular One collection is the first iconic timepiece ever created by ID Genève, where the stainless steel of watch case is local and traceable. It comes from waste product. So they continue to further their mission with Circular S and Circular C collections, which stand for solar and carbon respectively. So ये ID Genève के साथ इन लोग ने exclusive partnership किया है Ethos ने. So that is to be looked at. Then second Ethos exclusive partnership with launch Swiss brand Singer Reimagined. So ये इन्होंने ये ब्रांड लॉन्च किया है इंडिया में. Singer Reimagined is an award winning high watch making company based in Geneva. Then let us look at their how the performance of Ethos has been, quarterly performance. तो इसमें देखोगे तो आप 18.8% का इसका YOY ग्रोथ हुआ है रेवेन्यूज का. गुड अराउंड 19% का ग्रोथ कंपनी है क्वार्टर वाइज. ग्रॉस प्रॉफिट 15.9% इंक्रीज हुआ है. सो मार्जिन अराउंड 29.6, तो अच्छा मार्जिन है ग्रॉस में बेसिस पे. देन EBITDA मार्जिन इज 13.2%, दैट इज लिटिल बिट गॉन अप. Then PAT is 26 to 32.9, so 26% profit after tax grow हुआ है. So this is a good result. Then financial summary में consolidation operational highlights. See how the operational highlights are. First quarter of FY25, so from 268 crores to 318 crores, तो इनका सेल्स बढ़ा है 18.7% का. ऑनलाइन 17.6 बिलियन, ऑनलाइन से भी उनका 17.6% बढ़ा है ऑनलाइन. Whereas in FY24 आपका देखोगे ईयरली परफॉर्मेंस तो 26.8 एनुअल ग्रोथ, बहुत बढ़िया ग्रोथ है. 26% ऑनलाइन बिलिंग्स, ये भी बहुत बढ़िया है एज कम्पेयर टू FY23. So that's a high growth company. Then revenue from operations for this quarter, if you see FY25 first quarter to 230 to 273 हुआ है. EBITDA 28.9 से 36.8, 27% EBITDA ग्रोथ. EBITDA मार्जिन 84 बिप से बढ़ा है. PBT 26% से प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंक्रीज हुआ है. और ईयरली देखो तो 26.7% से ग्रोथ किया है कंपनी ने. EBITDA इज ग्रोइंग एट अराउंड 35%, बहुत बढ़िया. मार्जिन हैज गॉन अप एंड PBT इज 35.6%. Then revenue from operations, then what is the revenue? 273 crores, so it is 18.8%. Average selling price has been increased by 44,000 to 2,21,000 on a YOY basis. So सबसे बड़ा इनका मेन ये रहता है कि इनका एवरेज सेलिंग प्राइस जैसे बढ़ता है वैसे इनका मार्जिन्स बढ़ते हैं, इनका प्रॉफिट बढ़ता है. तो एवरेज सेलिंग प्राइस जितना कम होगा उनका मार्जिन्स कम रहेगा. जैसे जैसे एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ते जाएगा तो मार्जिन बढ़ता है. तो इसमें देखोगे तो क्वार्टर वन में 44,000 से इनका एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ा है ASP. तो ASP अगर इंक्रीज हुआ तो दिस इज अ गुड इंडिकेटर दैट द कंपनी इज गोइंग अप द वैल्यू चेन. सेकंड हैंड सेगमेंट विटनेस 31% ग्रोथ ऑन YOY. तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट माइलस्टोन दैट पॉजिटिव इज 31.7% का सेकंड हैंड सेगमेंट इंक्रीज हुआ है. Then they added 2 brands under exclusive partnership that we already saw and opened 3 stores in this quarter and 1 in August. तो ये 3 स्टोर ओपन किए उन्होंने और देयर आर 2 ब्रांड्स एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप का ब्रांड किया है. नंबर 4 इज बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग ब्रांड कोलैबोरेशन इनटू क्राफ्ट इंडिया एडिशन टाइम पीसेस. तो ये कंपनी का माइलस्टोन्स मतलब जो पॉजिटिव अचीवमेंट्स हुआ इन दिस क्वार्टर. ओके, सो नाउ लेट अस लुक एट द इंडस्ट्री टेलविंड. इसमें टेलविंड क्या है? इंडस्ट्री, हाउ द इंडस्ट्री इज ग्रोइंग. इसमें हु इज गोइंग टू बाय सो हाई प्रीमियम लग्जरी वॉचेस, because the company's objective is to cater to the entire spectrum of the watch price range. But इसमें क्या होता है कि if you see the share of high and luxury watches from FY21 58% to 73%, तो ये अच्छा है because हाई एंड लग्जरी वॉच जितना ज़्यादा बिकेगा उनका मार्जिन ज़्यादा बढ़ेगा. एवरेज सेलिंग प्राइस भी बढ़ रहा है. 1,09,000 था वो अभी 2,20,000 हुआ है. दैट इज अ पॉजिटिव साइन बिकॉज इन FY फर्स्ट क्वार्टर
द एवरेज सेलिंग प्राइस, ये सब देखना है, ये कंपनीज में ASP देखना है। जैसे ASP बढ़ेगा उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने वाला है, सिंपल। Rise in number of high net worth individuals in fast growing economies such as China and India has led to increase in wealth of people। तो ये इसमें ये कंपनी जो बनाती है प्रोडक्ट दैट इज लग्जरी वॉचेस, और ये अभी लग्जरी अदर एरियाज में जा रहे हैं, तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स इंडिया में जितने सारे हैं वो बढ़ने वाले हैं, वो दैट इज व्हाट देयर पॉइंट इज। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, अवेयरनेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लग्जरी ब्रांड्स एंड इथॉस विद इंटरनेशनल रिटेल स्टैंडर्ड। तो ये क्या होता है कि पहले क्या होता था कि लॉट ऑफ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल यूज्ड टू गो अब्रॉड एंड बाय द वॉचेस, ओके। लेकिन अभी क्या हुआ है कि ये ऑल दिस इंटरनेशनल इंपोर्टेड वॉचेस, ओके, द गुड क्वालिटी हाई क्वालिटी वॉचेस आर अवेलेबल इन इंडिया एंड इथोस हैज यू नो एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप। तो कुछ भी अगर इश्यूज आता है वो वॉचेस में, तो इथोस इज देयर। So that is a very good. So they are creating a engaging shopping experience for the luxury customers. Store location 66 stores across 26 cities in India। इतने सारे stores हैं इनके all across India, कोई भी ऐसा concentrated नहीं है, पूरा diversified stores है इनका all over India, spread across major metros। Boutique house has finest collection from 65 brand portfolios and more than 55 exclusive brand portfolios in world's top luxury watch brands। तो आप इसमें देख सकते हो, you can visit the Ethos store whenever you go to mall and see the experience how they have products are। We have ventured into business into new city कोची एंड देहरादून। तो ये कोची और देहरादून के नए इन्होंने ओपन किए हैं, जहाँ जहाँ पे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है वहाँ वहाँ पे इथोस है। तो ये सबसे बेस्ट ये है, बिकॉज ऑल ओवर इंडिया पैन इंडिया प्रेजेंस है। तो ये सब है इथॉस का। तो इसमें ऐसा है कि कंपनी इज केटरिंग टू हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। जैसे इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन जब होता है तो डिस्क्रिशनरी इनकम जो लोगों की कम हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि डिस्क्रिशनरी इनकम अगर कम होती है तो लोग कम खर्चा करते हैं ये सब प्रोडक्ट्स पे, बिकॉज इसेंशियल पे प्रोडक्ट देयर एक्सपेंसेस आर गोइंग इनटू इसेंशियल्स। तो ये डिस्क्रिशनरी का ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स है। तो डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दे हैव गॉट ह्यूज मनी wealth, so they can spend money on these high end watches। तो इसी के ऊपर ये कंपनी का प्रोडक्ट्स है। एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का कैसे रिपीट कस्टमर्स भी 45% है, ये भी बहुत बढ़िया है। देन देयर स्टोर्स लोकेशंस आर गोइंग अप, जैसे नए नए स्टोर खोल रहे हैं तो उनका एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है। एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स आर नॉट कंसर्न्ड, इन्फ्लेशन इज नॉट गोइंग टू हर्ट दिस कंपनी एट ऑल। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इथोस को। इन्फ्लेशन प्रूफ स्टॉक बोल सकते हैं इसको, इथोस को इन्फ्लेशन प्रूफ स्टॉक। सो बढ़िया है, वेरी गुड। कंपनी इज डूइंग प्रिटी वेल, बिकॉज क्या होता है कि हाई नेटवर्थ कस्टमर जो है उनको पैम्परिंग करना जरूरी होता है। उनको बिठाओ, दे एक्सप्लेन करो कि व्हाट आर द इंटरनेशनल वॉचेस दैट दे हैव टू एक्सप्लेन दैट। सो एक बाइंग एक्सपीरियंस होता है फॉर प्रीमियम वॉचेस। सो दैट एक्सपीरियंस दे आर क्रिएटिंग इन देयर स्टोर्स। So because of this experience, they can convert the particular visit into the actual sales of watches। तो ये सबसे बढ़िया मॉडल दैट दे आर फॉलोइंग। दिस ओनली रिटेल organized player in India for selling the luxury watches। So this was all about Ethos Limited। I hope you like this video। In case if you like this video, kindly subscribe and to my channel। but और एक बोल रहा हूँ कि Ethos price currently is quoted around 3,200 and the valuations are pretty expensive, but the company is growing। So you can consult your advisor, and if he says to go and buy, and then that you can consider purchase। but इसमें है कि long term, whenever you hold a stock for long term, then only you get wealth। this Ethos will continuously increase the stores। so what will happen is that maybe today the price is 3,200 and the price to earning ratio is very high, but what happens, corrections, whenever there are corrections, panics, then those are the good entry points for all these stocks। but continuously this company will continuously expand। high net worth individuals बढ़ने वाले इंडिया में, वेल्थ बढ़ने वाली है, तो ये दे आर गोइंग टू स्प्लर्ज ऑन दिस हाई एंड वॉचेस। तो जैसे आपने देखा ही कि अंबानी के वेडिंग में देयर वेर हाई एंड वॉचेस वेर डिस्प्लेड। सो पीपल हैव सीन द हाई एंड वॉचेस विच आर वोन बाय दिस ऑल दिस celebrities। so this is a demand is going to be there in India। जैसे जैसे वेल्थ बढ़ेगी तो demand for these high end watches is definitely going to be there in India। and I think this company is very well placed to cater to the demand of these high net worth individuals।
So this was all about Ethos Limited. देखो अगर प्राइस करेक्ट होता है तो दिस लुक्स गुड कंपनी, बट होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म 5-10 साल के लिए रखो, देन ओनली यू विल गेट द रियल वेल्थ इन स्टॉक मार्केट. सो दैट इज अ बेसिक मंत्रा फॉर इन्वेस्टिंग. So thank you very much.